very good morning to all of you. This is class 7th history lesson 6, the Mughal Empire. So students, the thought for today is let us always meet each other with a smile, for the smile is the beginning of love. As when we are talking to each other, we should always smile. By smile we can make everyone happy. So the thought of the day is ki be positive and always keep smiling and make others smile too. This is a beginning of a love. So in this is chapter 6 part 1 Mughal Empire. As in class in chapter 4 I have already made you understand कि Ibrahim Lodi was the last ruler after the death and he was after the death of Ibrahim Lodi, Babur came into power, and just because of that this led to the formation of Mughal Empire and of the modern empire. So the reasons for Babur's victory was कि as he was having very good weapons or considerably large guns to win the battle. Along with that, as he was using the weapons or guns, all the elephants got frightened. Another in the things which we'll discuss in this module is Humayun's Babur's son, difficulties faced by Humayun and Humayun's war. Along with that, Sher Shah Suri, as he was a son of a noble, his administration, Akbar's assassination, as well as expansion of the empire. These things we'll discuss in this module, and the new topic will be the Deccan campaign. So the Mughal Empire was started, and it was started as descendants of the Mongols were there in Central Asia. They were very tall, brave, and very having very thick beard people. They used to love art of warfare. Warfare means उन्हें लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद, उन्हें वॉर करना बहुत पसंद थी. The advantage was that कि they were conquer Turkestan and Indian China, नॉर्दर्न चाइना. सो दे टोल्ड कि इंडिया के पास बहुत सारी वेल्थ थी, तो वो चाहते थे कि इंडियंस को अटैक करें ताकि सारा जो इतना भी जो कैश है, जो भी अमाउंट है, जो वेल्थ है, वो उसको ले जाए. तो दे कंटिन्यूसली अटैक्ड इंडिया सेवरल टाइम्स as Delhi Sultans in 1526 got success as Babur defeated Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat, where they laid the foundation of Mughal Empire. The reasons for Babur's victory was all these things were written in the book or his autobiography, namely called as Tuzuku Babri. Underline it, 1 marks question can be asked. As he was having led to the course on a half day, इन्होंने एक दिन में नोट हाफ डे में इन्होंने इसके बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने ये मेंशन करके बताया था कि बाबर क्यों विन किया था. जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ आर्टरी. आर्टरी मतलब होता है लार्ज गन्स जो वॉर में यूज़ करते हैं. तो उन्होंने कहा कि आर्टरी जो थी वो बहुत ही मतलब उन्होंने जैसे ही बहुत बिग अपनी गन से अटैक करना स्टार्ट किया, आर्म्स यूज़ करे, तो जो एलिफेंट्स थे वो फ्राइटन हो गए, जिसकी वजह से सोल्जर्स सब गिर गए. As you can see in the picture, Zahiruddin Muhammad Babur, who defeated by Ibrahim Lodi. His father name was Umar Sheikh Mirza. He got birth on 1453, and he was the person who laid the foundation of Mughal dynasty. Please underline, 1 marks question can be asked. And the battle which he won, the most important battle, that is Battle of Panipat. And he was successors of Humayun, and he got death in 1530. So they told that Babur was having a very trained horsemen, so he arranged all the horses so that in a method so that कि जैसे वो अपने आर्म्स यूज़ करेंगे तो वो हॉर्स पे या उनके एनिमल्स पे अटैक्ट ना हो, उनके फ्राइटेंड ना हो, उन्हें मतलब अफेक्ट ना पड़े इस चीज़ का. तो हुमायूं की डेथ के बाद उनके जो बेटे थे, वो बाबर की डेथ, उनके बेटे हुमायूं पावर में आ गए. एज ही हैज़ ऑल्सो वांटेड टू एक्सटेंड द एम्पायर फ्रॉम बर्किस्तान टू सेंट्रल एशिया, but again he was not having so much time to consolidate his empire, so it was very difficult task for him to control all the things. The difficulties which he faced were the Afghans and the Rajput kings were as foreigners, because they wanted, जो वो चाहते थे कि वो फॉरेनर्स की तरह आते. फॉरेनर्स मतलब जो आते हैं वो इंडिया में अपना सामान जो भी उन्हें अच्छा लगता है अपने साथ ले जाते हैं. तो इन द सेम मैनर हुमायूं के साथ भी यही हो रहा था. अफगान और राजपूत किंग्स जो थे वो चाहते थे कि इंडिया का जितना भी पैसा है वो वेल्थ अपने साथ ले जाए. सेकेंड, द एम्पायर वॉज वास्ट, बहुत बड़ा एम्पायर था जिसको इकट्ठा एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था.
सेकंड, रेवेन्यू कलेक्ट जो था वो सिस्टमैटिक वे नहीं था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही ख़राब होती चली गई। हुमायूँस के जो ब्रदर्स थे वो भी उसको प्रवोक करते थे ताकि बदला, इसका मतलब लोगों के जो ब्रदर्स थे, बाकी और ब्रदर्स जो किंग नहीं बन पाते, वो हुमायूँ के साथ रिवेंज लेते थे ताकि उनको हरा सकें। हुमायूँस वॉर की अगर हम बात करें तो हुमायूँ ने अपनी प्रोविंस गुजरात और मालवा में फैलाई थी। सबसे बड़ी ट्रबल ये थी कि सबसे बड़ी ट्रबल या प्रॉब्लम जो हुमायूँ को दे रहे थे वो थे फरीद। वो चाहते थे कि उन्होंने जो चौसा पे उन्हें अटैक किया और वो उन्हें हराना चाहते थे, उन्होंने हराया भी। उसके बाद फरीद पावर में आ गए, उन्हें नया नाम दे दिया गया शेरशाह सूरी। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी का सेकंड नेम क्या था, तो उनका नेम था फरीद। तो उन्होंने कहा उन्होंने हुमायूँ को बैटल ऑफ कन्नौज में हरा दिया, जिसके बाद शेरशाह सूरी पावर में आ गए और उनकी किंगडम जो थी वो लॉस्ट हो गई। बट लोग हुमायूँ के साथ अनहैप्पी थे जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जो भी सिस्टमैटिक वर्क था उनका सिस्टमैटिक नहीं था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द पीपल यूज टू लीव सिंध एंड वांटेड टू गो टू पर्शिया। दिस इज़ द ओल्ड फोर्ट ऑफ हुमायूँ विच यू कैन सी विच वी हैव गॉट फ्रॉम माई लाइब्रेरी बुक। सो दे टोल्ड कि शाहजहाँ जो थे वो चाहते थे कि लोग उन्हें हेल्प करें और वो अपने भाइयों को ही हरा दे ताकि वो उस रूल को आगे कंटिन्यू कर पाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी वॉर्स हुई और उनके पास उनका हार चला गया। और इसकी अपॉर्चुनिटी मिली हुमायूँ को, उन्होंने अगेन इंडिया पर अटैक किया और 1555 फरवरी में उन्होंने लाहौर को कैप्चर करके दिल्ली, आगरा, ये सारे एरियाज़ को कवर करना स्टार्ट कर दिया। सिकंदराबाद में जो था, सिकंदर सूरी थे जो वहाँ के रूलर्स थे, उन्होंने 15 साल के बाद उनको हराया था हुमायूँ को। हुमायूँ वॉज नॉट लिव, हुमायूँ बहुत लंबे टाइम तक सक्सेसफुली नहीं रहे। उसके बाद 7 मंथ्स के बाद उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंटली। वो जो स्टेयर्स थी लाइब्रेरी की उससे फिसल गए और वो गिर गए थे, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। सो आफ्टर दैट जो शेरशाह सूरी थी, जिनका नाम अभी मैंने फरीद बताया था आपको, तो वो एक नोबल के जागीरदार के बेटे थे। उनका रियल नेम फरीद था। उनके इतने अच्छे एम्बिशियस वर्क करते थे कि लोगों ने उनका नाम फरीद से हटा के शेरशाह सूरी रख दिया। उन्होंने अब रीइस्टेब्लिशमेंट किया अफगान पावर का, क्योंकि वो चाहते थे कि वो हुमायूँ को हराया। उन्होंने 2 बार हराया भी। एज दे वांटेड कि ये जो टाइटल था शेरशाह सूरी का वो उन्हें इसीलिए मिला था क्योंकि उन्होंने उनको हराया था, तो लोगों ने खुशी से उनका नाम शेरशाह सूरी रख दिया था फरीद की जगह। ही ऑर्डर्ड अ कुतबाज टू द रीड एंड कॉइंस। उन्होंने सारी जितनी भी चीज़ें थी वो रिटन फॉर्म में लिखवाई ताकि जितने ब्रेव वॉरियर्स वगैरह जिनकी डेथ हो रही है गन पाउडर किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनका सारा रिटन रिकॉर्ड्स होना चाहिए। ये क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, बेटा आपको पता है। देन मैंने फर्स्ट पेज पे ही आपको ये बात बताई थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, जो मैंने आपको उसका नेम भी अंडरलाइन कराया था। शेरशाह सूरी कौन था अभी मैंने बताया है। फिर हुज टॉम इज़ इन सरसरम, अभी मैंने आपको इस ग्रुप में जो है लिखाया था कि जो है जो बाबर जो शाहजहाँ थे उनको जो बरी किया गया था वो बिहार में, वहाँ पर उनका ब्यूटीफुल मकबरा बनाया था या टॉम बनाया गया था। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। देन शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। शेरशाह एक बहुत ही ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे और वो चाहते थे कि काफ़ी चीज़ें चेंज हों। तो उन्होंने सबसे पहली बात तो थी अपने सोल्जर्स, अपने जो भी पर्सनस है जो उनके लिए वर्क करते थे, ऑफिसर्स थे, उनको कंटिन्यू सैलरी, जिसकी वजह से लोग खुश होने लगे। देन ही हैज़ बिल्ड मैनी रोड्स, लाइक ही वॉज अ वेरी गुड बिल्डर। उन्हें बहुत बिल्डिंग्स बनानी चाहिए थी, जैसे उन्होंने GT रोड बनाई थी कोलकाता में ताकि लोग पेशवा से वहाँ तक जा सकें। वहाँ पे बहुत बड़े अच्छे अच्छे पेड़ लगाए साइडों में, वेल्स बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनाए ताकि इजीली लोग वहाँ पे जाएं और खुशी से अपना रहने लगें। इस तरीके से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स बनाए जिसको उन्होंने टंका बोला। ही स्टार्टेड न्यू पोस्टल सिस्टम, जिस पे उन्होंने कहा कि सराइज बनाई थी जहाँ पे लोग रहते थे। रेस्ट हाउस का नाम सराइज था। GT रोड बनाई। उसके बाद दल चौकी में 2 हॉर्सेस हमेशा परमानेंट खड़े रहते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे नक्श चौकी तक। शेरशाह सूरी अपना एम्पायर 47 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको सरकार बोला। और हर सरकार में 2 चीफ ऑफिसर रखे थे जो सारा मैनेजमेंट देखते थे, चाहे वो पुलिस का वर्क हो, चाहे वो एक जज का वर्क हो, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब जो भी काम पड़ेगा वो सारा काम करते थे। शेरशाह सूरी ने रेवेन्यू सिस्टम बनाया था और रेवेन्यू उन्होंने फिक्स कर दिया था ताकि लोग किसी भी लैंड के ऊपर ना बना सकें। देन विच मुगल रूलर, इसका आंसर है आप खुद बता सकते हैं, ये मैं नहीं बताऊँगी बच्चों, ये आपका होमवर्क है।
देन आफ्टर दैट शेर शाह सूरी की डेथ हो गई थी। उनके बेटे सुल्तान इस्लाम शाह है, जिनको सलीम शाह भी बोलते हैं, वो भी बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई थी, क्योंकि वो प्रॉपर एक नॉर्मल इंसान में थोड़ा डिसऑर्डर था, तो जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब हो गई। और अगेन हुमायूं ने अपनी बैटल जो था वो किंगडम को लॉस कर दिया, जिसकी वजह से जो प्रोविंस थी वो मुगल्स के हैंड में आ गई। और मुगल्स में उन्होंने अकबर, जब जो मेन रूलर थे, हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ के बाद वही जो वो स्टेयर्स पे गिरे थे, उसके बाद अकबर रूल में आ गए। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वो टिमरिट से आए थे और उनके फादर का नाम नसरुद्दीन था। उनको टाइटल अकबर इसलिए दिया था क्योंकि वो सबकी बहुत हेल्प करते थे, बहुत ही अच्छे नेचर के थे। तो उनकी प्लेस ऑफ बर्थ अमरकोट सिंध थी। मेजर बैटल लड़ी थी पानीपत की सेकेंड। देखिए, बाबर ने फर्स्ट लड़ी थी, इन्होंने सेकेंड बैटल लड़ी थी। देन ही मेड फतेहपुर सीकरी। ये 1 नंबर क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा, ये आप इसमें देख सकते हैं, इसका आंसर लिखा हुआ है। अकबर ने कलौनगौर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने इसको क्राउन किया और 13 साल 4 महीने की एज में बैरम खान की हेल्प के साथ उन्होंने उसको उस एरिया पे कैप्चर कर लिया। अब अकबर चाहते थे कि बैरम खान के साथ मिलके उन्होंने सेकंड बैटल पानीपत लड़ी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से सारे जो एरियाज थे उनके हैंड्स में आ गए, उनके कवर मतलब अंडर में आ गए। अकबर ने गोंडवाना को कैप्चर किया और वो चाहते थे कि उनके अच्छे रिलेशंस बन जाए राजपूत के साथ, इसीलिए अकबर ने अपना एम्पायर नॉर्थ वेस्ट दोनों तरफ फैलाया, ताकि वो काबुल, कश्मीर, लोअर सिंध, ईस्टर्न बलूचिस्तान, ये सारे एरियाज़ को कवर कर सके। बेटा, ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें बता रहे हैं कि बुलंद दराज फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी? अकबर ने, ताकि वहाँ पे वो गुजरात में कॉन्कर करके हरा सके। By this we had reached the end of the module. This is in part second we'll discuss about Deccan campaign. Thanks for watching. God bless you all.